You're listening to the Quince podcast. रेस तो शुरू हो गया है लल्लन जी। अब शायद आप भी पहली बार देखिएगा कि ये ₹2 वाला टट्टू कैसे डर्बी जीतता है। क्या कर रहा था यहाँ बाया फैला कर? ये जगह से शाहरुख खान बनन की। So those dialogues sound familiar, no? They're from Super 30 and Tanu as Manu Returns. The difference being that these two are the people who actually trained Hrithik and Kangana to speak like that. Kyunki Bollywood is finally using dialect coaches. Hey guys, my name is Nankumar and you're listening to the 4th episode of Off Screen, where we talk movies and web shows and to the people who slog it out behind the scenes, that is off screen, to make things happen on screen. Forgive my slightly nasal voice, I'm just dealing with the aftermath of a bad cold. So who are dialect coaches? A dialect coach trains an actor to create a certain voice and speech of a certain region like Bhojpuri, Punjabi, Gujarati, etc. The most recent example, of course, is Super 30, and while Hrithik's accent has had a pretty mixed response, at least dialect coach ka use to kiya. Remember the earlier days where every South Indian would say ayyo or a Bihari would say ka hai babua? मतलब generalization तो बहुत ही ज़्यादा था. Actually, आजकल भी है. If you remember that horrible accent of Deepika's in Chennai Express. डीसी के साथ जो हुई, तुम उसका सोलो विटनेस, इसलिए तुम हमारा साथ कुंभन का जाती चेन्नई एक्सप्रेस ले. Or even recently, Siddharth Malhotra and Pariniti's Bihari accent in Jabariya Jodi. कोई ना कोई मतलब रिश्ता करवा रहे हमारा. ये लौंडा बहुत ही चालाक है और चतुर भी. तो सोचेगा हेलमेट पहन के 2-4 चक्कर लगा लेता हूँ. साले का एक्सीडेंट हेलमेट पहन के होगा. So Ganesh Kumar, who worked on Super 30, and Sunita Sharma, who worked on Tanu as Manu Returns, talked to me this week about what it's like to train these big stars. How do you maintain the authenticity when trying to make a Hindi picture and dealing with criticism? But before that, I want you to know that you can tune in to listen to me every Wednesday on the Quince channel, so watch out for this space. And if you like this podcast and want to hear more like it, you can head over to the Quince podcast section or subscribe to the Quince channel on Apple, Google Podcasts and Spotify. So let's begin. चीटिंग है ये तो किस्मत इन बच्चों के साथ जो किया वो क्या प्रतिभा दिए साधन नहीं दिए चीटिंग नहीं तो और क्या आशीर्वाद है आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा राजा वही बनेगा जो हकदार होगा. First, let me start by asking you that Super 30 को release हुए अब थोड़ा time हो गया है. So how do you look back at the response जो मिला ऋतिक रोशन के accent पे, क्योंकि the reactions have been mixed. अभी 1-2 महीने जब गुजर गए हैं फिल्म को रिलीज होते तो how do you look back at it? देखिए, अब वाकई में गुजर गया है थोड़ा सा लम्हा, लेकिन जो भी है हर तरफ से मिक्स रिव्यूज़ आए, लेकिन जो फाइनली जो मैक्सिमाइज रिव्यूज़ था वो कि हर किसी को काम पसंद आया है ना. और चूँकि जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो लोग क्रिश के ऋतिक रोशन को और बैंग बैंग के ऋतिक रोशन को अचानक से एकदम दूसरे कलर में और दूसरे स्लैंग के साथ देख रहे थे. बट लेकिन जैसे ही फिल्म शुरू होती है और 5 मिनट के बाद सारा मामला ब्लेंड हो जाता है. तो हर तरफ से अप्रिसिएशन ही है. सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. इवन ऋतिक रोशन एंड द होल टीम इज़ लाइकिंग, और जो फिल्म का प्रॉफिट भी है वो बहुत ज़्यादा गया है. टाइमलाइन कैसा था ऋतिक को ट्रेन करने का फॉर दिस एक्सेंट? आपको कितना टाइम मिला? आप कितना काम कर पाए उस चीज़ पे? मुझे इसमें बहुत सारा टाइम मिला था, है ना. लाइक कि प्री प्रोडक्शन में शूट से पहले हम लोगों ने कुछ 3 महीने के करीब ट्रेनिंग करी थी, और ऑन शूट में था, फिर डबिंग में भी था. टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे अच्छा टाइम मिला था, उन्होंने भी अच्छा टाइम दिया था. लगभग हम लोग वीक में 5 दिन, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, 6 घंटे की ट्रेनिंग तो करते ही थे. सो अच्छा है और बहुत बढ़िया है ना. और एक चीज़ और भी होती है कि क्या भोजपुरी भाषा में फिल्म बना रहे हैं, क्या वी आर गिविंग द फ्लेवर टू द पब्लिक कि आप लैंग्वेज भी समझ पाएं, है ना, और स्टोरी भी आप तक पहुंचे. So while Ganesh had to deal with like mixed reactions to the film he worked on, Sunita ji had an overwhelmingly positive response for Kangana's performance in Tanu as Manu Returns. So let's hear it from her. Sunita ji, welcome to our podcast and thank you so much for doing this. Thank you. बट तनु एज मनु रिटर्न्स की बात करें तो आई थिंक कंगना ने जो दत्तो का कैरेक्टर प्ले किया था, आई थिंक उसको बहुत अप्रिसिएशन मिला उस हरियाणवी एक्सेंट के लिए, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ आपकी ट्रेनिंग. तो उनको ट्रेन करने में का प्रोसेस क्या था?
ट्रेन करना एक चीज़ होती है और एक एक्टर का डेडिकेशन होता है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है तो वो चीज़ पर्दे पे नज़र आती है। तो मैं इसके लिए मतलब अगर मेरा इनपुट रहा है तो उनका भी रहा है, तभी वो कैरेक्टर इतना निखर के आया सामने और पब्लिक ने इतना अप्रिशिएट किया है। तो भाई साहब लॉन्ग एंड शॉर्ट बात ये है कि थारी लगाई लगे तो हमारी जी सी, पर मैं थारी लगाई ना सू। हमारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवान, यो हमारी सैली पिंकी। हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू, स्पोर्ट्स कोटे तहत मिस लिया, नेशनल लेवल के एथलीट सू, जिला जजर 124507 और फोन नंबर में दऊ को ना। मुझे आज भी मतलब उस फिल्म का हिस्सा होने पे बहुत खुशी होती है। फिर उसके बाद मतलब मेरे लिए एक रिवॉर्ड ये रहा कि उसके बाद जब आमिर सर ने मुझे दंगल के लिए कॉल किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मेहनत कामयाब हुई है। राइट। तो सर ने अप्रिशिएट किया है उस चीज़ को और सामने से उन्होंने बुलाया है। तो और उसके बाद फिर मैं जैसे दंगल का हिस्सा बनी। बट तनु एज मनु रिटर्न्स का प्रोसेस कैसा था? मतलब कितना टाइम मिला आपको कंगना को ट्रेन करने के लिए? उसको ट्रेन करने के लिए मतलब हमने काफ़ी हमारे प्रैक्टिस सेशन काफ़ी रहे हैं और कंगना बहुत सिंसियरली सीखती थी उस जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते थे और तब तक वो मतलब अपने डायलॉग्स को छोड़ती नहीं थी जब तक उनको वो एकदम रट नहीं लेती थी। राइट। तो ट्रेनिंग ऐसी होती है कि सिर्फ आप फिल्म के डायलॉग्स पर काम करते हैं या जनरल डायलेक्ट? जनरल डायलेक्ट भी साथ साथ चलता ही है क्योंकि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लैंग्वेज को लेके जितनी अच्छी होती है तो डिलीवरी के वक्त तो प्रॉब्लम नहीं आती, ये तो एक बात होती ही है। मोरओवर अगर आप कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं सेट पे तो उसके लिए भी आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बूस्ट अप हो जाते हैं आप उसके लिए। तो आप सेट पे थी थ्रू आउट द शूटिंग? और उस दौरान भी ट्रेनिंग होती थी? हाँ, उस दौरान तो बल्कि ज़्यादा होती है सेट पे क्योंकि यहाँ पे तो आप जो एज इन बॉम्बे में वो ट्रेनिंग सेशंस हमारे जो चलते हैं, जो प्रैक्टिस वगैरह वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं वो तो ठीक है, बट मुझे बल्कि अब तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सेट पे जाके आर्टिस्ट और ज़्यादा फोकस भी हो जाता है और वो अपने कैरेक्टर में भी आ जाता है। तो वहाँ की जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत मैटर करती है क्योंकि हम हर दिन का सीन एक फ्रेश उसमें करते हैं और तो उस टाइम उसकी बारीकियाँ भी आर्टिस्ट जो होता है वो ज़्यादा ध्यान से नोट वो खुद भी ज़्यादा ध्यान से नोट करते हैं। जब तक हम ये एक टेंडेंसी होती है ना हमारी, जैसे बच्चे साल भर पढ़ाई करेंगे बट उस तरह से नहीं करते जैसे जब एग्जाम सर पे होते हैं तो तो सेम वे एक्टर्स का भी तभी जब तक हम बॉम्बे में कर रहे होते हैं लाइटली लेते हैं, उतना सिंसियर नहीं होते हैं, लेकिन जब सेट पे होते हैं तो वो fully devoted. So both these coaches have worked with huge stars, but is it intimidating and scary to instruct them? And more importantly, do these guys actually listen to them? हाँ बिल्कुल। जैसे ही ये प्रोजेक्ट का कॉल मेरे पास आया था For Super 30. हाँ for Super 30, तो अचानक से ही मिक्स्ड इमोशंस मेरे अंदर आई कि पहला तो ओ माय गॉड आई गॉट दिस फॉर ऋतिक रोशन विद ऋतिक रोशन, और सेकंड की मतलब अरे कैसे करूँगा कि मतलब जिनके साथ भी करता रहा हूँ वो इतने बड़े ओहदे के आर्टिस्ट नहीं रहे हैं, सो कैसे होगा। बट मैं जो पहली दफ़ा उनसे मिला और तो उन्होंने ही इतना स्टूडेंट टाइप फील कराया मुझे कि ही वॉज सो रिसेप्टिव, और मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आप करवाओ कैसे करना है। तो मैंने कहा ओ नाइस, काम हो गया फिर तो। मैंने क्योंकि जो मामला होता है कि थ्रू द वॉल कैसे जाएंगे, तो मैंने देखा यहाँ तो कोई वॉल ही नहीं है। करेक्ट। तो बस सब मामला आसान हो गया, थोड़ा सा टाइम फ्रेम का मामला रहता था, लेकिन तो वो इंटिमिडेशन नहीं थी कि मतलब इनके साथ कैसे काम करेंगे, कोई वो डर नहीं था तो... हाँ, कोई ऐसा मतलब प्री प्रोडक्शन में तो ऐसा कोई डर नहीं था। ऑन शूट थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि चूँकि लोकेशन पे सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो सम डे ही वॉज इन बैड मूड और गुड मूड, तो
बड़ा उस तरह से ट्रीट करना पड़ता था कि आज किस तरह से करेंगे, अदरवाइज लैंग्वेज सीखेगा ही नहीं आदमी। हाँ, जिला टॉप लागेलू दिल धक धक करने लगा, मेरा जिया डरने लगा। So that was Ganesh rehearsing with Hrithik Roshan right before the shooting began. But how does Sunita ji work around these stars? चैलेंजेस होते हैं स्टार्टिंग में। जब मैं किसी बड़े स्टार के साथ हो तो कुछ 2-4 दिन के लिए मेरे दिमाग में वो नाम रहता है कि भाई ये इतना बड़ा स्टार है, तो पता नहीं मेरी बात को सुनेंगे भी या नहीं, मानेंगे भी या नहीं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैं करने लगती हूँ अपना काम, तो मैं ये चीज़ें भूल जाती हूँ और मुझे फिर मेरा काम नज़र आ रहा होता है। फिर मुझे उनका स्टारडम ये वो मुझे उसके बारे में सोचती नहीं हो आप? नहीं सोचती भी नहीं, मैं दरकिनार कर देती हूँ। वो लोग मुझे चाहे बोलते हैं कि आप बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर हो, मुझे देख के डरते भी हैं, भागते भी हैं कि आ गई सुनीता जी, आप नहीं छोड़ेंगी। पर बेनिफिट तो फिल्म का ही होता है फिर। हाँ वो लेकिन होता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वो सब्र रखना पड़ता है ना उनको तब तक। जब रिजल्ट सामने आता है तब खुशी सबको होती है, लेकिन उस के लिए जो तैयारी वाला पीरियड जाता है ना, तो सब इम्पेशेंट होते हैं और उनको लगता है कि अरे ये क्यों, मतलब काश किसी तरह से ये खत्म हो जाए। हाँ, तो और मेरा काम ही यही है कि मुझे उन्हें पकड़ के रखना है, उन्हें छोड़ना नहीं है तब तक जब तक। और फिर मैं तो माफ़ी भी मांग लेती हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई प्लीज़ मुझे माफ़ करना कि मैं आपकी स्ट्रिक्ट हूँ हमेशा। नहीं, स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ मतलब मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। आप कह रही, आप एक्चुअली दंगल में आपने मुझे कहा था काफ़ी एक फ़नी इंसिडेंट था जब आप टोकती थी और आमिर खान आपको कुछ कहते थे। वो तो हमेशा के लिए एक पेट लाइन थी उनकी कि सुनीता जी इस फिल्म के बाद आपका मर्डर पक्का है। तो मैं कहती थी ठीक है सर, मर्डर कर लेना, उसके बाद कर लेना, चलेगा, फिल्म पहले खत्म कर लेना। हाँ, अभी तो ये बोलना ही पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ। आई एम श्योर उनके लिए भी मुश्किल रहा होगा टू बहुत वो इसी में फंसे रहते थे, ये मैं तय कहाँ आप के लगा देती है, कहाँ कै लगा देती है, ने लगा देती है। So it's interesting to see these different approaches. Ganesh wants the process to be enjoyable for the actors, but Sunita ji insists on perfection, even if that means multiple takes for the actors. पर अब इन actors को train कैसे किया जाए? It's not easy to pick up a dialect in like a short span of time. So how do these dialect coaches actually teach these guys? That brings me to my other question कि आप इन्हें सिखाते कैसे हो? मतलब what is the process like? आप एक इंसान को जिसको एक डायलॉग के बारे में शायद कुछ नहीं पता है, आप उनको कैसे सिखाओगे फ्रॉम स्क्रैच? हाँ, ये हमें लग रहा है कि लैंग्वेज सिर्फ मुंह से ही बोली जाती है, ये बिल्कुल भी बात नहीं है। आपके कपड़े, आपका खान पान है ना, आपका उठना बैठना, वो सब लैंग्वेज डिसाइड करता है, है ना। सो ये स्लैंग और टंग की बात नहीं, इट इज़ ऑल अराउंड आपकी पर्सोना में आता है, पर्सनैलिटी की बात है। तो मुझे वो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सच में करना पड़ता है कि अब तक आप जो भी लाइफ जीते रहे हो, वी विल गो टूवर्ड्स दैट कैरेक्टर्स लाइफ, है ना, जो उसका सराउंडिंग है, जो उसके फेस्टिवल्स हैं, जो उसके फीलिंग का स्तर है। और फिर कुछ साउंड्स हैं लाइक आउच, राइट। ये आउच जो साउंड वो इंग्लिश साउंड है और ये आपको ना हरियाणा में मिलेगा ना गुजरात में मिलेगा, राइट। हर जगह अरे भाई, है ना, अरे यो क्या कर दे भाई, राइट। तो जब तक आप वो साउंड्स नहीं जानेंगे, वो बहुत बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है, मतलब हमारे यहाँ बहुत एक्सप्रेशन और बॉडी बहुत ही यूज होती है। और इस फिल्म में एक गाना है क्या, क्वेश्चन मार्क, सो दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग पे भी था अजय अतुल इन लोगों के साथ, तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि कैन वी चेंज इट क्वेश्चन मार्क टू क्वेश्चन मार्क, है ना। सो देयर इज नो एसएच इन बिहार, राइट, तो एस कर सकते हैं इसको क्या? तो बोले हाँ कर सकते हैं। और फिर ये छोटे इनपुट्स आर व्हाट मेक्स इट
ऑथेंटिक ना, कोई भी डायलेक्ट को राइट छोटी चीज़ें उसे ऑथेंटिक बनाती हैं। राइट। तो गाने की रिकॉर्डिंग पे मैं था, डबिंग के टाइम भी मैं था, तो ख़ास तौर से ऋतिक रोशन की जो डबिंग थी तो उस टाइम पे भी मैं था। इतनी आज़ादी इस फिल्म में जितनी मुझे मिली है इससे पहले नहीं मिली है। एक डायलेक्ट को सीखने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? इज द टोन? हाँ, टोन पकड़ना ही मुश्किल होता है सबसे। मैंने जिनको भी अभी तक वो किया है, टोन जब तक आप नहीं पकड़ते हो तो आप उस लैंग्वेज की सोल को नहीं जीते हो। राइट। तो ये तो हर एक्टर के लिए, मैं कहती हूँ कि एक्टर हो या किसी भी वे में अगर हम किसी बेगानी भाषा को अपनाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, उसकी टोन को पकड़ पाना। बोलना एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसे ही होके बोलना, उन लोगों के बीच में से एक होके बोलना, वो बड़ी बात होती है। Assuming like you're not doing dialect coaching, like जब आप एक फिल्म पे काम कर रहे हो, काम खत्म हो गया, तो you're acting otherwise? करते हो? Definitely, I'm doing acting, right? और फिल्म पे काम करने के अलावा और अभी मैं उतना बिजी नहीं हूँ, जैसे पंकज त्रिपाठी भी पहले स्लैंग कर रहे थे, उन्होंने उड़ता पंजाब और कुछ फिल्मों के लिए किया है ना, राइटिंग भी कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ी राइटिंग, अभी उतने प्रोजेक्ट्स में रेगुलरली बिजी नहीं रहता हूँ, तो एक्टिंग करता हूँ और जो पर्सनल बेसिस पे लोगों को ट्रेन करता हूँ मैं। Right. हाँ। So what I can gather from this is that while there seems to be some improvement in perfecting North Indian dialects, maybe some effort can be directed towards doing the same for South Indian dialects as well, right? But that's a conversation for another time. For now, one can only hope that using dialect coaches actually becomes a norm, because it adds so much texture to any film. Tune in next Wednesday to yet another episode of Off Screen, and if you have any suggestions, you can get in touch with me on @nandakumar_27 on Twitter and Instagram, or you can drop me a mail on nandkumar.ramohan@thequint.com. And before I sign off, don't forget to subscribe to the Quint's channel on Apple, Google Podcasts, Spotify, or any of the several platforms we're on right now. Have a great week and see you next time.